गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर मैथमेटिक्स क्लास। किमें हो सारे ठीक ठाक। नाउ वी स्टार्ट आवर मैथमेटिक्स क्लास। फस्ट ऑफ ऑल आप फॉलो करनी है बुक स्पैक्ट्रम दी शर्मा पब्लिशर दी। ठीक है जी, स्पैक्ट्रम दी बुक शर्मा पब्लिशर दी जी आप सारे ने फॉलो करनी है। हुण अपने सिलेबस दे विच फस्ट चैप्टर आंदा आ सैट्स। ठीक है जी, एक बेसिक चैप्टर आ जिहड़ा कि तुसीं ध्यान नाल समझ लोगे तो अगे +1 के मोस्ट ऑफ चैप्टर्स इदां दे आने जिन्हां दे विच सैट्स यूज़ होना है। ईवन +2 दे विच भी अपने इदां दे चैप्टर्स आने जिन्हां दे विच सैट्स यूज़ होना है। तो आप इहदे सारे कॉन्सैप्ट नूं ध्यान नाल समझना है। ठीक है जी, फस्ट ऑफ ऑल आंदा कि आ सैट्स। आप देखते हैं डेफिनेशन ऑफ सैट की बोलता है। हाँ जी, अपना सैट की बोलता है, अ सैट इज़ अ कलैक्शन ऑफ वैल डिफाइंड एंड डिफरेंट ऑबजैक्ट्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। एग्जाम्पल सैट ऑफ मैथेमैटिक बुक्स। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕ ਬੁੱਕਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਆ, ਜਸਟ ਮੈਥ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਥ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫੋਰ ਦੀ ਫਰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, नैक्सट ये बोलता सैट ऑफ इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਵਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰਸ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਪਰਸਨਸ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪਰਸਨ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੈੱਟ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੈੱਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਜਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਐਜ਼ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਮੈਥ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥ ਬੁੱਕਸ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਥ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ, ਅਨਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ हाँ जी, नैक्सट देखो आप देखिए ना मोस्ट इंटैलीजेंट स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल देती उन्होंने की बोलिया कि डिफाइंड करो कि सैट है ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं। ठीक है जी, ਹੁਣ अगर तुसी देखा जाए कि मोस्ट इंटैलीजेंट स्टूडेंट, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ कि स्टूडेंट ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਟੌਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਓ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ।
ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 90% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨੋਟ ਕਲੀਅਰ। ठीक है जी। बिकॉज जी मोस्ट इंटैलीजेंट है, यदा मतलब कि कि कोई भी बच्चा मोस्ट इंटैलीजेंट किसी कोई भी बच्चा आ सकता है, जो तू लगे मैनू ना लगे, जो मैनू लगे वो तू ना लगे। बट जिदा आ वाले सीगे ये प्रॉपर कलैक्शन भी सी, डिफाइन भी होंगे सी। ये मेरे तो कलैक्शन हो ही नहीं सकनी। क्यों नहीं कलैक्शन हो सकनी? क्योंकि जो थानू मैं बोलूँगी कि तुम मोस्ट इंटैलीजेंट लिखो, वो तुम अपनी कलैक्शन के अकॉर्डिंग लिखने हैं। जोड़े मेरे होने वो मेरी अकॉर्डिंग के कलैक्शन के होने हैं, तो दोनों च डिफरेंस हो जाना, दोनों मैच नहीं ना करेंगे। दैट्स वाई इदा दी एग्जाम्पल्स भी होंदियां हैं जो नॉट क्लीयर होंदियां और जो सैट दे विच क्लीयर भी नहीं हो सकदियां, तो उन्होंने आपां कलैक्शन दे विच ले लैंदे हां। कलैक्शन तो हो जानी कि मैं बच्चों को इकट्ठे कर लिया है, लभ लिया है, बट उन्हों की डेफिनेशन जी वो प्रॉपरली नहीं दे होनी। ठीक है जी। आप बोलिया से ना कि ऑब्जैक्ट में एलीमेंट भी बोल देंगे। ठीक है जी। हुण इहदे विच होर एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन्होंने की लिखा, द सैट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। डिफाइन हो गया कि उन्होंने हफ्ते आते दिन पूछे हुए हैं। ठीक है जी। हफ्ते के किन्ने दिन आते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं ना। कलैक्ट भी हो गया कि 7 दिन होंगे आ, और डिफाइन भी कर सकते हैं किहड़े होंगे पर्टिकुलरली हो गया। यदा मतलब की हो गया कि सैट आ। दैन सैट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1 लाख, मतलब प्रॉपरली लिमिट दी हुई है कि 1 to 1 लाख के पर्टिकुलर आ। यदा मतलब सैट आ, कलैक्शन भी हो जाएगी, डिफाइन भी हो रहा है। ईवन इंटीजर्स, यदा भी इंटीजर्स की गल हो रही है, वो भी ईवन दी 2 4 ते चले जाओ। ठीक है जी। ईवनस सैट आ। अगेन स्टेट ऑफ इंडिया, तुसीं सारिया इंडिया दी स्टेट्स नूं देख सकते हो, उन्हों का सैट बना के लिख सकते हो ना सारिया का। यदा मतलब की कि भी सैट आ। दैन नैक्सट आता द सैट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स की जगह तो तुसीं 1 पुट करो, 2 पुट करो, सारिया की स्क्वेयरिंग का आंसर आ जाना ना। यदा मतलब ये सारे की है कि डिफाइन सैट हो रहे हैं। हाँ जी। नैक्सट आता है वाला पॉइंट कि सैट नूं आपां लिखते किद्दां आ। ठीक है जी। वह लिखण का तरीका देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो उन्होंने की बोला, सैट ऑफ अ नैचुरल नंबर लैस दैन 5। यदा मतलब की हो गया कि मैं वो वाले नैचुरल नंबर लिखने हैं जोड़े 5 तो लैस हो, तो की हो सकते हैं वो वाले सारे यही हो सकते। 5 तो लैस की होंगे 1 2 3 4, और वो नैचुरल की गल करता पाया, तो नैचुरल नंबर स्टार्ट कितों होंगे 1 तो। दैन फिर उन्होंने लैस दैन 5 बोलिया, यदा मतलब 5 तो घट, तो कितना हो जाऊगा 1 2 3 4, अपने नैचुरल आ गए अपने। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, 1 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 5 6 7 ਅਪ ਟੂ A B C ਸਮੋਲ ਸਮਥਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਦਾ ਕੌਮਾਸ, मतलब कॉमास ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਕ तो हो गया कि आप लिख लिया, ਹੁਣ ਆਣਾ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, तो ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो इट मीनस की हो गया सैट नूं लिखण का तरीका की हुंदा, एक तो ये हुंदा कि करली ब्रेसिस के अंदर लिखा जाता, उपरों दी इहदे जिहड़े भी जिन्ने भी एलीमेंट्स हुंदे आ उन्हां नूं सपलिट जां फिर अलग अलग करके लिखा जाता, एक एक करके लिखा जाता है विद द हैल्प ऑफ कॉमास। ठीक है। हाँ जी। नैक्सट देखो सैट नोटेशन। सैट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लैटर्स, फॉर एग्जाम्पल A B C अप टू सो ऑन। ठीक है जी। सैट की है मतलब मेरे को जिदा कि आ सीगा सैट, इनू मैं डिनोट कर, उन्होंने की बोलता सैट ऑफ नैचुरल नंबर लैस दैन 5, तो आप आ वाली चीज़ लिखी। हुण सपोज करो कि मेरे को कोई भी सैट गिवन है A, सैट A गिवन है। ठीक है जी। हुण सैट नूं आपां लिखदे किहदे विच हम, करली ब्रेसिस दे विच, तो इत्थे की पावांगे आपां करली ब्रेसिस। और ये अंदर की लिखे जाते हैं एलीमेंट्स, उन्होंने इतने की लिखता था, एलीमेंट्स ऑफ सैट्स आर डिनोटेड मोस्टली बाय स्मॉल लैटर्स A B C अप टू सो ऑन। इसका मतलब की हो गया कि एक तो जो मेरा सैट आ, मतलब सैट डिफाइन कितना होना है, कैपिटल लैटर्स ना A B C, मतलब इतने मैं लिखता जी A। ठीक है। और सैट की गल हो रही है, मतलब करली ब्रेसिस दे विच जाऊगा। हुण उहदे विच एलीमेंट्स की गल हो रही है, और एलीमेंट्स किहड़े हुंदे आ, A B C भी हो सकते, 1 2 3 भी हो सकते, X Y Z भी हो सकते स्मॉल्स। ठीक है जी। मतलब कोई भी स्मॉल लैटर्स होंगे, तो मैं इतने की ले लिया
ਸੈੱਟ A ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਤੇ A, B, C, D, E। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ A ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤੇ ਸਮੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਮਾਸ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈਟਸ। ਐਨ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ, ਮਤਲਬ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਨਾ, 1 ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2 ਵੀ 3 ਵੀ 4 ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਡਬਲਿਊ। ਡਬਲਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ, ਹੋਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ 1 2 3 4 ਹੈ ਨਾ, तो आ गया 1 2 3 4 अप टू सो वन सेम आ गया। हुण होल नंबर की गल हो रही है, होल दे विच ये है कि ये एक की आ जाना होर जीरो ऐड हो जाना। नैचुरल आ वो जीरो नहीं आ, वो 1 तो स्टार्ट होंदा है। ठीक है। उस तो ग्रेटर आंदा होल नंबर। होल नंबर च की आ कि जीरो ऐड होके बाकी सारे नैचुरल नंबरस ही आ जाते हैं। ठीक है जी। नैक्सट आ जाओ इंटीजर्स। इंटीजर्स नूं किहनां डिनोट करदे आ आई और Z नाल भी डिनोट कर सकते हैं। सैट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स विच किहड़े आंदे आ फस्ट ऑफ ऑल इहदे विच नैचुरल आया सी, नैचुरल च जो आप होल चाहे होल दे विच भी नैचुरल आ गया, ऐड की हो गया जीरो। हुण मेरा इंटीजर आ गया, इंटीजर च किया कि होल नंबरस भी आ जाएंगे, सम कुछ ऐड भी होंगे। फस्ट ऑफ ऑल होल नंबर किहड़े सी 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो इत्थे सारे आ गए ना 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। हुण सैट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ इहदे विच पॉजिटिव एज वैल एज नैगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है जी। इंटीजर दे विच नैगेटिव भी आते हैं और जीरो तो लैके पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। नैगेटिव भी सो ऑन तो शुरू हो सकते हैं, माइनस इनफिनिटी तो लैके पॉजिटिव इनफिनिटी तक। ठीक है जी। उन्होंने की बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स दे विच देखो नैचुरल तो होल आया, होल दे विच नैचुरल्स आए, दैन जो इंटीजर्स आया इंटीजर्स दे विच होल्स नंबर आ गए और ऐड की हो गए ना नैगेटिव नंबरस। ठीक है। हाँ जी। नैक्सट आ जाता अपना क्यों की बोलता वो कि स्टैंड करता है सैट ऑफ ऑल रैशनल नंबरस। 10th किया होया ना ये वाली टर्म P अपॉन Q और जी एनी P अपॉन Q दे विच फॉर्म होंदी है उन्होंने की बोलते हैं आप रैशनल नंबरस। वो बोलते कि अपना Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स। मतलब PQ आर इंटीजर्स मतलब कोई भी नंबरस हो सकते हैं। इंटीजर्स अपने आप ही नंबर होंगे माइनस इनफिनिटी अप टू पॉजिटिव इनफिनिटी। ठीक है जी। कोई भी नंबर हो सकता, फॉर एग्जाम्पल 2/3 हो सकता, पॉजिटिव नैगेटिव भी हो सकता, 1/6 अगेन पॉजिटिव अगेन नैगेटिव। ये मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नैगेटिव दोनों टर्म्स आ सकती हैं। इंटीजर्स के पॉजिटिव नैगेटिव दोनों टर्म्स होंदियां, बट ये कंडीशन की है कि P अपॉन Q की फॉर्म से ही टर्म आऊगी, तो अपॉन से आ रही है। ठीक है जी। एक सैकेंड होर आ जो तुम 10th च भी रिलेट करो 1.31 31 31 अप टू सो ऑन कंटिन्यूस चली जाता। टर्म रिपीट हो रही है ना, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग पढ़िया हुआ है ना 10th च। रिपीटिंग मतलब वो रिपीट हो रही है 31 31 31 31 अप टू सो ऑन, रिपीट भी हो रही है एंड नॉन टर्मीनेटिंग इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबरस। ठीक है। इन्हों भी रैशनल नंबरस बोलते हैं, इस टर्म को भी रैशनल नंबरस बोलते हैं। नैक्सट स्टैंड करता है T सैट ऑफ ऑल इररैशनल नंबरस। जो रैशनल नहीं है वो इररैशनल। इररैशनल्स किहड़े होंदे आप ये भी प्रूव किया है 10th च। √2 इज़ आ इररैशनल, √5 इज़ आ इररैशनल, √3 इज़ आ इररैशनल, √7 इज़ आ इररैशनल अप टू सो ऑन जिहड़े साडे रूट वाली टर्म्स होंदियां इररैशनल्स। हुण इहदे विच एक होर कंडीशन आ 1.21346892 रैंडम कोई भी नंबर ऐड कर दो इहदे विच। ठीक है। अप टू सो ऑन चल रहा है, इसका मतलब क्योंकि है कि ये वाली टर्म है जी नॉन रिपीटिंग आ, सेम नंबर नहीं ना आ रहा, नॉन रिपीटिंग हो गया जिमें रिपीट हो रहे इतने की हो गया नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मीनेटिंग इज़ ऑल्सो इररैशनल नंबर। ठीक है जी। जोड़े नॉन रिपीटिंग होन और नॉन टर्मीनेटिंग होन उन्होंने की बोलते हैं इररैशनल, और जो रिपीटिंग होन उन्होंने की बोलते हैं रैशनल। हाँ जी। नैक्सट अपना आर किनू स्टैंड करता है सैट ऑफ ऑल रियल नंबरस। रियल नंबरस दे विच की आ जांदा सारे रैशनल और इररैशनल। रैशनल च की आंदा है मतलब अपना P अपॉन Q की फॉर्म च आ जाता है। इररैशनल च किहड़े आ जाते अपने रूट वाली टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि अपने रैशनल्स और इररैशनल दे विच सारियां टर्म्स आ जांदियां ना, नैचुरल होल नंबर। ठीक है जी। दैन इंटीजर्स
दैन फिर रैशनल, दैन इरेशनल, सारे अप टू सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है जी। दैन ये नैगेटिव नंबर्स भी आ जाने, पॉजिटिव नंबर्स। इट मीनस तुसीं 10th च पढ़िया हुआ है फस्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है जी। जोड़ा भी रियल लाइन के उत्ते जोड़ा भी नंबर डिफाइंड हो जाता उन्होंने की बोलते हैं आप रियल नंबर्स। ठीक है जी। हुण अगर नैक्सट देखो एन पॉजिटिव, एवरीवन नोज कि अपने नैचुरल नंबर्स सारे पॉजिटिव टर्म्स ही होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दैन नैक्सट आ गया आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव का मतलब की हो गया सैट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये जो सैट ऑफ रियल नंबर्स आ सिंपल आर वो की है नैगेटिव भी आने पॉजिटिव आने, बट जो उन्होंने उपर प्लस का साइन दे देना यदा मतलब क्या कि पॉजिटिव की गल कर रहा है। अगेन नैक्सट आप आई पढ़िया सी इंटीजर्स लिए वो की नैगेटिव भी आते सी नंबर पॉजिटिव भी आते सी। हुण इत्थे की हो गया अगेन साइन पॉजिटिव का, यदा मतलब की है कि हुण सिर्फ इत्थे किहदी गल हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की जोड़े 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जाएंगे। ठीक है जी। नैक्सट आ गया कि वो आप कि पढ़िया सी रैशनल नंबर्स लिए। हुण ये प्लस की फॉर्म आ, यदा मतलब की है कि ये जस्ट जिन्ने भी नंबर्स आउणगे वो सारी सीरीज प्लस वाली होएगी, कोई भी नैगेटिव एलीमेंट नहीं शो करूगा। ठीक है। नैक्सट हम आप एग्जाम्पल देखते हैं। अपन कोई भी सैट गिवन आ ए जिहदे एलीमेंट्स आ ए बी सी डी ई। उन्होंने की पूछा, उन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट ए। हुण आप अगर एक सैट गिवन आ उन्हें मैंने बोलिया कि तुसीं फाइंड करो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट ए, तो किवें फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलीमेंट्स। कंडीशनस की होगी नंबर ऑफ, नंबर का मतलब आप एन ना डिनोट करते होंगे। ठीक है। गल कि कर रहा है सैट ए की, यदा मतलब की आ एज किन्ने नंबर्स ऑफ फाइंड करने आ, किन्ने नंबर्स आ मतलब किन्ने एलीमेंट्स आ, तो किन्ने हो गए आ देखो नंबर ऑफ एलीमेंट्स की गल करता ना, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन सैट ए। ठीक है जी। नंबर का मतलब एन, सैट ए की गल करता पिया ए, दैन एलीमेंट्स किन्ने काउंट करो 1 2 3 4 5, तो एलीमेंट्स किन्ने हो गए मेरे 5। ठीक है जी। नंबर ऑफ एलीमेंट किन्ने हो गए 5। यदा मतलब आ वाली इन्नी बड़ी जी लाइन गिवन आपां नूं इन शॉर्ट किद्दां लिखदे आ एन ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन अ सैट ए किहनूं डिफाइन करदा प्रॉपर एन ए नूं। ठीक आ। नैक्सट मेरा की आंदा पिया आ कि सैट कैन बी रिप्रजेंटेड इन 2 वेज। ठीक आ। आप लिखा ना मैथड ऑफ सैट, तो किन्ने मैथड होंदे आ सैट्स दे 2 मैथड्स होंदे आ, किहड़े किहड़े देखदे आ। हाँ जी। अपने मैथड्स किन्ने होंदे सैट के 2, किहड़े एक फर्स्ट होंदा है टैबुलर और रोस्टर मैथड। ठीक है जी। सैकेंड हो गया सैट बिल्डर और रूल मैथड। ठीक है जी। फर्स्ट जो टैबुलर आ वो की बोलते हैं वैन वी रिप्रजेंट अ सैट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट विद इन करली ब्रैकेट्स सैपरेट बाय कॉमास इट इज़ कॉल्ड अ टैबुलर। यदा मतलब की कहना चाहा उन्हें कि आप जोड़ा भी टैबुलर मैथड आ उन्होंने आप किद्दां लिखदे आ दिस फॉर्म च लिखदे आ, मतलब करली ब्रेसिस दे विच लिखदे आ, उहदे एलीमेंट्स नूं आप सैपरेट कॉमास दे नाल डिफाइन करदे आ। इन शॉर्ट की आप एक एक करके एलीमेंट लिखदे आ करली ब्रेसिस दे अंदर और विद इन कॉमास। ठीक है जी। हुण फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अ सैट ऑफ वॉबल्स। उन्हें की बोलिया अ सैट ऑफ वॉबल्स, दैन इनू मैं टैबुलर फॉर्म च किद्दां लिखूँगी गिवन अ इज इक्वल टू सैट लिखता करली ब्रेसिस लिख लिया वो एलीमेंट्स लिखे ए ई आई ओ यू बॉबल्स कहे उन्होंने, तो वो किहड़े हो गए ए ई आई ओ यू। करली ब्रेसिस यूज़ की एलीमेंट्स यूज़ किए और मैं उन्होंने सैपरेट कितना किया है यूज बाय कॉमास। ठीक है। तीनों चीज़ें यूज़ हो गई जो उपर थ्रैटिकल पोर्शन च लिखिया आ। ठीक है जी। नैक्सट एक होर एग्जाम्पल देख लो अ सैट ऑफ पॉजिटिव ईवन इंटीजर्स अप टू 10, मतलब की बोलिया कि उन्हें तुम पॉजिटिव इंटीजर लिखने जस्ट 10 तक। ठीक है जी। तो किहड़े हो जाएंगे ईवन इंटीजर्स, कोई भी मैं सैट कलैक्ट किया करली ब्रेसिस लिया करली ब्रेसिस दे विच एलीमेंट्स लिखे किहड़े हो जाएंगे ईवन 2 4 6 8 10 यही हो सकते हैं ना पॉजिटिव 10 तक ईवन। तो उन्होंने मैं सैपरेट कितना कर पई हाँ कॉमास दे नाल 2 4 इतनी 8 6 अप टू 10। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब इन शॉर्ट मेरी टैबुलर फॉर्म बोलती की आ कि तुसी कोई भी जो सैट लिखना आ उन करली ब्रेसिस दे विच जां करली ब्रैकेट्स दे विच लिखना आ उन्हां दे एलीमेंट्स नूं कॉमास दे नाल सैपरेट करके लिखना आ। ठीक है। हाँ जी। हुण नैक्सट आओ सैट बिल्डर फॉर्म की बोलती है जां रूल मैथड की बोलता है वी डू नॉट लिस्ट ऑल एलीमेंट्स बट सैट इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्पैसीफाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कहना की चाहा ये की कह रहा सी कि तुसी एक एलीमेंट लिखते हो करली ब्रेसिस के अंदर लिखते हो और सैपरेट कितना करते हो कॉमास नाल, यही चीज़ बोलता सी। हुण
ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਮਤਲਬ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਡੂ ਨਾਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੂੰਗੀ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈੱਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ X, 2 ਡੋਟਸ ਲਗਾਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਾਰਮ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ X ਸੱਚ ਦੈਟ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, X 2 ਡੋਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ X ਸੱਚ ਦੈਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਡੋਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੈਟ। X ਤਾਂ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦੈਨ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ X ਸੱਚ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਲੀਆਂ ਇੱਧਰ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो की हो जाएगा X, मतलब कि हो गया है कि सेट ऑफ ऑल X सच दैट X is a vowel of English alphabet। इद्दां लिख सकते हैं ना। सैट बिल्डर की बोलती है कि तुसी एलीमेंट्स नहीं लिख सकते ये विच, ठीक है जी। कॉमास नाल सैपरेशन नहीं हुंदी इहदे विच, तुसी एक एक करके एलीमेंट नहीं लिख सकते, तुसी उहनूं स्पैसीफाइंग प्रॉपर्टी दे विच लिखना है। तो यही हो सकता, प्रॉपर्टी तो यही बन सकती है। हुण अगर मैनूं देखो, सपोज करो उन्होंने दिता होया सैट बिल्डर फॉर्म, सैट बिल्डर च उन्होंने लिखा होया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबैट। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆ, ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੈਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੌਮਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਮਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਰਨਲ ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਬੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਅਪ ਟੂ 10। ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ 2 4 6 8, ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ ਸੈੱਟ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ, ਦੈਨ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਅਪ ਟੂ 10 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਬਿਲਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ set of all x such that x is a positive even integer up to 10। यही बोलता सीगा सैट बिल्डर, सॉरी टैबलर फॉर्म मेरी यही बोलती सीगी, ठीक है जी। दैन इसी फॉर्म नूं, मतलब ये सैट टैबलर फॉर्म च की सीगा कि करली ब्रेसिस दे विच एक एक करके एलीमेंट लिखते हैं विद द सैपरेशन ऑफ कॉमास। दैन जो मैं सैट बिल्डर फॉर्म च बनाना आ, उन्होंने जर्नल फॉर्म च लिखना आ, प्रॉपर्टी दे विच लिखना आ, सिंगल एलीमेंट एक एक करके नहीं लिखना सीगा, सैपरेशनस नहीं होनी चाहिए कॉमास की। यही बोलता सी तो कि प्रॉपर्टी च लिख होएगा set of all x such that x is a positive even integer up to 10, ठीक है जी। थ्योरेटिकल पोर्शन च लिख हो जाता है सैट बिल्डर फॉर्म। हुण आपां एक एग्जाम्पल देखते हैं होर। उन्होंने की बोलिया टैबूलर फॉर्म टू सैट बिल्डर फॉर्म, मतलब कोई भी तुहानूं सैट गिवन होएगा, तुसीं उहनूं टैबूलर फॉर्म तो सैट बिल्डर फॉर्म दे विच कन्वर्ट करना। देखते हैं अपन कोई भी सैट गिवन है, सैट किहड़े गिवन है, सैट ए इज इक्वल टू -3 -2 -10 -1 0 1 2 3 अप टू 6 टैबूलर फॉर्म गिवन है। हुण इहनूं कन्वर्ट किहदे विच करना मैं, सैट बिल्डर च। तो किद्दां करूँगे देखते हैं। फस्ट ऑफ ऑल तुसीं नंबर्स नूं देखो, नंबर्स किहड़े आ, देखे देखे लगदे आ, किहड़े होणगे, जाओ पिछे अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स दे विच। इंटीजर्स आ ना, इंटीजर्स होंदे आ नैगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है जी। तो इनू हुण आपां सैट बिल्डर्स किवें कन्वर्ट करांगे, देखो सैट ए गिवन आ, ठीक है जी। अपना कोई भी
एक्स हाँ एक्स नंबर होंदा है सैट होंदा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पिछे आप लिखते सी एक्स बिलोंग्स टू एन वो नैचुरल नंबर्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ एक्स ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ Z ठीक है जी अगे फर्दर उन्हें की दिता -3 तो लैके 6 तक आ दैन आप ये थोड़ी एक्सप्लानेशन होर दे सकते हैं तो एक्सप्लानेशन ये किदा हो जाएगी एक्स के लाई करता पाया है मेरा -3 तो लैके पॉजिटिव दे 6 तक मेरी टैबुलर फॉर्म सैट बिल्डर फॉर्म च इस तरह कन्वर्ट हुई है ठीक है जी किमें उन्होंने की बोलिया सीगा कि एक्स तो मतलब आ सारे एक्स के विच की आ 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 नंबर पुट कर सकती हाँ और आ सारे मैंने गिवन दिते हुए आ एक्स बिलोंग किनू करता पाया Z नू मतलब आ सारे नंबरस किनू बिलोंग करते पे आ Z नू और एक्स लाइक ये कर रही है -3 तो लैके 6 तक ठीक है जी मतलब एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू -3 टू लैस दैन और इक्वल टू 6 ठीक है जी।